ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آج وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مانسون سسٹم بحیرہ عرب میں موجود ہے، جس کے باعث کراچی میں آج وقفے سے بارش ہوتی رہے گی۔ شہر میں آج تیز بارش ہوئی اور درجہ حرارت میں کمی آئی تو کل معتدل بارش کا امکان ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شدید گرج چمک کے دوران شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گرج چمک کے دوران صرف ایمرجنسی کالز کے لیے فون استعمال کریں۔ موسمیاتی ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ سڑک پر موجود افراد درخت، باڑ اور کھمبوں سے دور رہیں۔ آسمانی بجلی کی زد میں آنے والی ہر چیز پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ کراچی میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار۔ کراچی کے علاقے شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ ماڈل کالونی کے اطراف میں بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ آئی چندریگڑھ روڈ، ڈیفنس گلستان جوہر، ناظم آباد اور اطراف میں بھی بادل برسے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گزشتہ روز موسمیاتی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ معتدل بارش کا امکان ہے، جبکہ بدھ کو کراچی میں موسلادھار بارش کا امکان بھی رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 23 اگست تک جاری رہنے والے سسٹم کے دوران شہر بھر میں 2 سے 3 اسپیلز آ سکتے ہیں۔ اسپیل کے دوران شہر کے بیشتر مقامات پر 40 سے 50 میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ چند مقامات پر 70 سے 80 اور کہیں 100 ملی میٹر بارش کا بھی امکان ہے۔ شہر قائد میں بارش کی چند بوندیں پڑتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام فیل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بارش کے بعد 350 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ گلشن اقبال بلاک 13D اور C، اولڈ سٹی ایریا، صدر گارڈن، ناظم آباد، کورنگی، لیاقت آباد، لائنز ایریا، حیدرآباد کالونی میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ حفاظتی پروٹوکول کے تحت چند نشیبی علاقوں میں بجلی کی فراہمی عارضی بند کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت جاری، مزید 1.5 لاکھ کیوسک پانی پاکستان کی جانب چھوڑ دیا گیا۔ جسٹر کے مقام پر 60 سے 61 ہزار کیوسک ریلا دریائے راوی میں داخل ہوا، جس کے بعد دریائے راوی میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث راوی کے ارد گرد آبادیوں کا انخلا کرا دیا گیا ہے۔ ترجمان پی ٹی ایم کے مطابق پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,09,000 کیوسک ہے۔ کالا باغ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 4,40,000 کیوسک ہے۔ چشمے کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,92,000 کیوسک اور درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ تونسا پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال اور پانی کا بہاؤ 4,89,000 کیوسک ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع شانگلہ اور بونیر میں پاکستان آرمی کے انجینئرز کور اور ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ پیر بابا بازار میں عوام کی سہولت کے لیے ملبہ ہٹانے کا عمل رات بھر جاری رہا، جبکہ گوگنج جانے والی سڑک کو 3 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہٹا کر کھولا گیا ہے۔ آرمی انجینئرز نے بھاری مشینری کی مدد سے آلوچ پران کی سڑک کو بھی کلیئر کر دیا۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھاری مشینری کے ساتھ بیسونی اور قادر نگر میں مسلسل سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ پاک فوج نے کہا ہے کہ اب تک پیشونی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ متعدد پل ٹریفک کے لیے تاحال کھولے نہ جا سکے۔ 56 پلوں میں سے صرف 9 پلوں کو ہی ٹریفک کے لیے مکمل کھولا جا سکا۔ محکمہ تعمیرات و مواصلات کے مطابق 47 پلوں کو مکمل فعال نہ بنانے سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تباہ شدہ 56 میں سے 36 پلوں پر جزوی طور پر ٹریفک بحال۔ مردان کے 16 تباہ شدہ پلوں میں سے اب تک کسی ایک پل کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکا۔ اپر اور لوور دیر میں سیلاب سے 11 پل متاثر، اب تک کسی ایک کو بھی مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھولا نہیں جا سکا۔ سوات کے 8 پلوں میں سے صرف 2 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سیلاب کے باعث چترال میں متاثرہ 2 پل بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے۔ کوہستان میں 4، ہری پور میں 3 پلوں کی مرمت ابھی ہونی ہے۔ کرم کے 2 اور مانسہرہ کے بھی 2 پل مرمت کے منتظر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کے 4,804 میٹر پلوں میں 4,478 میٹر کو نقصان پہنچا۔ پلوں کی بحالی پر 557، مکمل بحالی پر 1,768 ملین روپے خرچ ہوں گے۔
खबर देंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून बारिशों से अब तक 23 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो चुके हैं। एसडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में 167 घर मुकम्मल तबाह हुए, 635 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ है, 49 दुकानें तबाह हो गईं, जबकि 212 मवेशी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 पंचक्कियाँ भी दरिया बुर्द हो गईं। वादी नीलम और जेहलम वैली समेत मुतादिद इलाकों में 25 राबता पुल नदी नालों में बह गए हैं। सैलाबी रेलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में मजमूई 50.5 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं। नदी नालों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 स्कूल भी तबाह हो गए। 40 नहरें, 59 वाटर सप्लाई स्कीमों और 14 गाड़ियों को भी बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचा है। एसडीएमए के मुताबिक वादी नीलम में 10 पुल, 2 हाइडल पावर, 40 नहरी मंसूबे भी नदी नालों में शदीद तुग़यानी से तबाह हुए। तबाहकारियों और जानी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हमनसब इसहाक डार से ताज़ियत की है। तर्जमान के मुताबिक चीनी सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खबर ले रहा है। फिलहाल सैलाबी सूरत हाल में किसी चीनी शहरी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं। वाज़ेह रहे मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 650 से तजावुज़ कर गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में 657 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात करते हुए कहा कि चीन और भारत को एक दूसरे को शिराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या ख़तरा नहीं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक चीन के आला सिफारतकार पीर को भारत पहुंचे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात की और तवक्को है कि वो अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय हममनसब जयशंकर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को शिराकतदार समझें, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रैटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन हम आहंगी बाहिमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाया मुमालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मलकियती इदारों के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में इस्लाहात के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए इस्टेब्लिशमेंट करेंगे और कमेटी के 3 हफ्तों के अंदर सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई है। इंकिशाफ हुआ था कि एक सरकारी मलकियती इदारे के CEO ने 32 माह में 35 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद के फ़वाइद हासिल किए हैं। काबीना डिवीज़न की जानिब से 15 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को SOAs के बोर्ड्स की तकर्री और गवर्नेंस के अमल को जायज़ा लेकर इसको शफाफ और मौसर बनाने का काम सौंपा गया है ताकि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। अहम खबर देंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, चित्राल, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान, चारसदा, बटखेल, टेक्सला, DI खान और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बायस शहरी खौफजदा होकर कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन था। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को 14 रोज़ के रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। कोयटा में 12 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने वाले ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को CTD की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर उस्मान काजी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 12 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर उस्मान काजी ने वीडियो बयान में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में कलअदम तंजीम के सहूलतकारी का एतराफ़ किया है।
रूस यूक्रेन जंग बंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क़याम के लिए अमेरिका रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। रूसी सदर प्यूटन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। देरपा अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मामला ठीक रहे तो सह फरीक़ी मीटिंग करेंगे। प्यूटन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम सबका एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। जंग बंदी के लिए ट्रंप, प्यूटन, ज़ेलेंस्की मुलाकात का इम्कान है। उनका कहना था कि जंग में काफ़ी जानी और माली नुकसान हो चुका। सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि सबको सूरत हाल का इल्म है। बड़ी जंग रुकवाई चाहता हूं, दुनिया में अमन हो और सब तिजारत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर प्यूटन से टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू की, जिसमें प्यूटन ने ट्रंप को बताया वो यूक्रेनी हमअनसब से मिलने पर तैयार हैं। ट्रंप ने प्यूटन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत से आगाह किया। दोनों सदूर के दरमियान बातचीत 40 मिनट तक जारी रही। यूक्रेन के अलावा दीगर उमूर पर भी राब्ते बरकरार रखने पर इतफाक। इस मौके पर सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे को आलमी अमन के लिए निहायत अहम करार दिया। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने इसराइल के साथ 60 दिन की जंग बंदी और यरगमालियों को तबादले पर मबनी एक मुआहदे को कबूल कर लिया है। मिस्री सरकारी ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइल के साथ एक 60 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश को कबूल कर लिया है, जिसके तहत गज़ा में कैद आधे यरगमालियों की रिहाई और उसके बदले इसराइली जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने भी इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा कि दीगर फ़लस्तीनी गिरोहों ने भी सालिसों को अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तफसीलात पर बाज़ाब्ता रद्द अमल को नहीं आया। अलबत्ता एक इसराइली एहलकार ने तस्दीक की है कि मुआहदा उन्हें मौसूल हुआ है। ये सिफारती कोशिशें मिस्र और कतर की जानिब से की जा रही हैं, जबकि अमरीका इस अमल में सालिसी के तौर पर हिमायत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तनाजुली के बाद बी कैटेगरी में शामिल। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। बी, सी और डी कैटेगरी में मजमूई तौर पर 30 क्रिकेटर्स शामिल हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन जाफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आखा बी कैटेगरी में शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज और नुमान अली को सी कैटेगरी में रखा गया है। टेस्ट कप्तान शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी, खुरम शहजाद और सुफियान मुकीम डी कैटेगरी में शामिल हैं। खबर देंगे। एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया है। उर्दन में होने वाली चैंपियनशिप की -52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका नूर सऊदी अरब की प्लेयर को जेर न कर सकी। मलाइका नूर को फाइनल में सऊदी जूडो कॉज से शिकस्त हुई और वो सिल्वर मेडल की हकदार बनी। पाकिस्तान की मलाइका नूर ने 3 ममालिक के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।